چلے یاد تیری رہے ہو خوشی یا ہو غم یاد تیری رہے ہو خوشی یا ہو غم باقی درشن تمہارا ہوئے دھنیہ ہم باقی درشن تمہارا ہوئے دھنیہ ہم baju udah net कितना सेट करते हो
गाड़ी चलाना होता है। पीछे बैठ जाओ। जय गुरुदेव। आप लोग आवाज मत लगाइए, अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। आवाज मत लगाइए, मुंह से शांत पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए अपने ही स्थान पर खड़े होकर के।
تم کو سندے کے گناہ میں ہو ایسا کبھی مت سمجھو کہ مجھے نام ہمارا ہے بابا جی کا نام ہے اور نہ آپ کا کسی کا نام ہے یہ سرے پالو پاؤں اور نہ نارے اس مسلم کا بھی نام یہ سچے اور چیز کا نام آپ کو کرنا ہے ارے تب گوشوں پر سے بولنا چاہیے اس پر شرم کیا بات ہے بولو جے
آج ہی ہمارے بڑے سوبھاگیہ کہ ہم کو سب کو یہ موقع ملا. ایسا سمے جیون میں ایک تو اچھا نہیں ہے اور سب تو آپ ایسے اتسو اور مان جو آپ کو سوبھاگ سے ملا ہوتا سب کو نام لینا چاہیے. اس سے آپ کو چپ کرو جس سے آپ نے پرارتھنا کی ہے اس کے ایسے پروگرام کو ایک ایک روز میں پرکاش کرتے ہو تو اس سورج کی کیا ہے اس جان کو کیا کرنا ہے یہ کہ ایک ایک روز میں اربوں اربوں سورج چاند لگے ہوتے ہیں. آپ وہاں کے اس دیش کے اس گھر کے اپنے پتا کے پربھو کے پاس میں اور کیسے بھیجے گئے آپ نہ آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں سے آیا نہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا کون سا دیش ہے نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ راستے سے آیا ہوں. آپ کی کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی آپ کو معلوم ہے کہاں جاؤں گا اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے سوچ کیا رہے تو صحیح اور سچی بات ہے کہ آپ نے اپنا گھر اپنا دیش آنند کا سکھا جو 18 سال رہے گیان اور سچی رہا اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور پرائے دیش میں آئے تو پرائے دیش میں جائے تو یہاں اب پرائے دیش میں تو آپ کو معلوم پڑ جائے کہ پرائے دیش میں پرائے دیش میں آپ کی کیسے سنسان دیا آرام اور آنند کیونکہ یہاں تو پرائے دیش ہے یہاں نہ سکھ ہے نہ آرام ہے نہ شانتی ہے نہ اور آپ اسی میں بھول سے اس میں بھول رہے ہو کہ ہم کو یہاں آرام بجلی چلی گئی سرکار تو بجلی نہیں جلدی لاؤ جنریٹر نہیں جنریٹر تو چالو ہی رہنا چاہیے بجلی گئی کا مطلب تو تم لوگوں کو دیکھنے سے مطلب بجلی کیا مطلب جنریٹر کیا معلوم نہیں خراب ہو گئی کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے غریب سے غریب ان کے لیے 5 دن پر ایک پیسہ بھی نہیں ہے وہ بھی مجبوری کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کچھ بچا تو میں پیسے بچاؤں گا تو مجھے آؤں تو ملے گا پھر لے کے آئے تو دھیرے دھیرے پیسے جو ہوگی دکان کو تو پھر دھیرے دھیرے کم کے پیسے کرتے کر دیے تو پھر بڑی دکان لگا بڑی دکان میں بات پیسے کرتی ہے دکان کرتا ہے آپ اپنے پیسے کما دیے تو ہم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں پیسہ پوچھا ہے تو پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آرام ملے گا آنند ملے گا ہم نے ملا چلے میں سوچ رہا تھا کہ کھانا کھاؤں تو میں وہاں سے یہاں آیا تو میں روٹی روٹی پہلے روٹی روٹی تھی کھانا بھی کھاتا تھا اور موٹے بڑی جو ہے وہ مجھے تم کو اس سے نہیں ملا
اور یہ سب دنیا کا مقابلہ نہ ہوتا ہے کہنے سے تھوڑا کچھ تو کہتا ہے کیا کہتا ہے نہیں نام جو ہے دادا کو نام نہیں تھا تو ان سے پوچھا کیا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور یہ ہو گیا یہاں تک آئی ہو گیا تو یہاں سے کیا ہے پہلے میں کچھ نہ کرے تو مجھے کھا رہا ہوں اور بس پر ساتھی اور ملے گا تو یہاں پہ کچھ ہے آگے کیا سوچو گے بات ہے کہ جتنے دیکھنے کی چیزیں ہیں جتنے سونے کی چیزیں ہیں جتنے کھانے کی چیزیں ہیں جتنے چیزیں خرچ کرنے کی جو بھی چیزیں کتنے کا سواد لینے کی اس میں سو گئے اس میں آرام اور کیا ہے چھڑے میرا کر کھائیے تو چھڑے کا سواد ملا تو پہلے چیز بہت اچھی اس کو کھایا اس کو بنایا تو بولے کہ اب ایسے ہی آپ کو جو اس میں رکھا ہوگا وہ آنند اس میں ہوگا اس میں مل جائے گا تو آپ جتنے پریوں کے لوگ سے ان میں گھومنے میں کوئی کمی نہیں تھی خوب ہو گئے لیکن اس سے ملا تو یہاں پر یہ سب چیزیں نہیں چھڑے ہے ذرا آئے وہ بھی ٹھنڈا ہے آنند نہیں ہے اور آنند بھی ٹھنڈا ہے سردی کو کہتے ہیں پہاڑوں میں برف نہیں ہے تو یہاں اس کی سردی آ رہی تو سردی ہے برف کو پہاڑوں میں جب ہوئی تو وہاں اسی طرح سے انڈیوں کے دروازے کا من جو ہے برا من کے ہاتھ کا ہے ہم زیادہ میرا تو کتنے جو اور کتنے قلب بھی تھے جب سے اپنے من کے یہاں سے اپنے دل سے اکھنڈ دیکھتے اچل دیکھتے اور مطلب یہ کہ نروے دیکھتے آیا آنند کے ساگر سے تب سے آج تک کچھ نہیں مذاق کرنا وہ ملے گا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت تم کر رہے ہو یہ تمہاری محنت کو بیکار ہو جائے یہ تمہاری جیواتما کے لیے فلیط نہیں ہے جیواتما کے لیے کب فلیط ہوگی جب آپ کسی فقیر کو کسی مہاتما جنہوں نے اپنی جیواتما کو جگایا اور پرماتما کو جنہوں نے تمہارے کو پراپت کیا وہ اگر مل جائے گا تو یہ آپ سے محنت کبھی محنت کبھی بہت ہوگی اور تو ایک محنت کو زندگی ہوتا یہ جو کچھ بھی کام کاج کر رہے ہو تو کچھ سامان کر کے کر سکتے ہیں یہ بہت محنت کری آپ کو یہ ویکتی تھوڑے دن میں ملتا یہ اپنے لیے دیا دیتے ہیں تو یہاں کے تو رہنے والے ہو نہیں ان کو اپنے مالک کے دین سے رہنے والے ہو مالک تو ہم نے سیوا کی ہے مالک تو سیوا کر کے اس کو خود کر دیا انہوں نے ہم کو تو ان کو دے دیا جان تو میں تمہارے اوپر کیوں نہیں کرتا میں تم کو کام کر کے لے آیا ہوں جان اسی میں لایا اور مطلب یہ ہے کہ میں نے تم کو یہاں مطالعہ لا کر دیا مولن بہتری دیا ہے اور یہ خوش ہوتا ہوں اس میں کوئی کچرا نہیں کوئی گندگی نہیں نہ ستے نہ ستے نہ نیائے نہ انیائے نہ ہنسا نہ ہنسا یہ بالکل صاف ستھرا ہے یہ تمہارا انترکرن یہ ہردے ہے یہ تمہارا دل ہے یہ ہارڈ ہے تو میں نے تم کو اس کو صاف دیا اور یہ دیوار کو بیٹھے تھے وہ دونوں آنکھوں کے مطلب اس کی وہ صورت کہتے اس کی مرادہ کہتے اس کی مقیدہ کہتے اور اسی کو روح کہتے ہیں اسی کو سول کہتے ہیں یہ دونوں آنکھوں کے مطلب ہے اور شریر کے لاگے پر بیٹھے تو میں نے تم کو یہ نور منوختری جسم کو تم کیے دیا صاف ستھرا اسے ختم کیا ہمارے دیش کا جو بدھان بنا ہے یعنی یہ وہاں کو ہم اچھا قرآن نیائے کرتا ہے اس کا تم ٹھیک ہے پالن کرو اور ہمارے مکان کو جو تم کو دے رہے اس کو بنا مت کرنا تو یہ مکان ہمارا ہے
یہ جس ہوتا ہے کھانا اس نے آپ کو یہ دیا ہے کہ کوئی جیواتما کو روح ہو گیا، لیکن کوئی مہاتما کبھی مل جائے اس کے پاس جا کر کے راستہ جانا، جب راستہ مل جائے تو تم اس کو جگانا، اور مالک کے پاس تو تمہارا بھی مالک ہے اور ہمارا بھی ہے، اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ ہم کو تو مطلب اس نے سمسیا میں آپ کو دیا تو ہم تو یہاں کو لے کر کے راج کرنا ہے، لیکن تمہارے اوپر ہم بندھن نہیں لگا رہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بندھن لگائیں، بندھن چھوڑا تھا تو تم جیواتما کو جگا کر کے اور مالک کے پاس، اور یہ جو مکان ہے یہ تمہارے کو کرائے منگلام اور یہ منتری کا نور ہے سب کچھ، اس کی کوئی قیمت نہیں، سارے وقت کے ہیرے اور سارے وقت کے جتنے بھی ہیں سونے چاندی اور سب کو یہ کرے اکٹھا کرتے اور خالی رکھتے اور اس کی آرتی کرو اس طرح سے کہ ہم تمہارے اوپر سب چڑھا دیں گے اور سارے کو رات دیتے ہیں تو کھڑے ہوئے ہو تو اس مکان کو بولا ہے یہ کہتے ہم بولا تھوڑے دیر کے لیے آپ کی سلائی سنتا، اس نے کہا کہ وہ جیسا میں تم کو صاف دیتا ہوں ویسے ہی مجھے لوٹا دیا اور تم جیواتما کو جگا کے اپنے گھر میں پہنچ جاؤ، مالک کے ساتھ انتظار کرو، میں تم کو روکتا نہیں، لیکن میں نے جو اپنے دیش میں یہ بنایا یعنی قانون بنایا نظام بنایا اس کے تحت تم لوگ سب چلنا، سمجھے اچھا کام کرنا ہوگا، اچھا کام کرو گے برا نہیں کرو گے تو میں تم کو ہمیشہ یہ موقع تم کو دیکھا ہوگا یہ بہت قریب پانے کا، اور تم اس میں بیٹھ کر کے کوشش کرتے رہو مہمان کو یعنی سب کام کرنا، نیک کام کرنا، بد کام مت کرنا، اچھا کام کرنا ہوتا تو میں تم کو بہت قریب پانے کا موقع دوں گا اور تم کو یہ برابر دیتا ہوں سکھا لوں گا، میں تم کو اس لیے بہت قریب دیتا ہوں جیواتما کو جگا کے اور اپنے دیش سے اپنے گھر میں مالک کے ساتھ تو آپ نے قانون معلوم دیا، قانون کو آپ نے رد کر دیا کہ ہم یہ قانون کو نہیں مانتے، تو اس نے کہا تم قانون کو نہیں مانتے ہو لیکن ہم تو تم کو لوگ کو اس جانور میں پورا ادھکار دیتے آزادی دیتے، لیکن وہ جیسا چاہو دیکھو اچھا ہوا کام سے اچھا تم ہوگا اور بارش سے اچھا ہوگا، من سے اچھا سنکلپ کرو، چنتن سے اچھا چنتن کرو، بدھی سے اچھا سوچو پراپت کرو اور اچھا کرو، ہاتھ اور پیر کی جو پوجا کرتے ہو انسان آدمی تو اچھی کرو تھوڑا کرو تو ان کو پورا کا پورا سکون کرتا ہے، ہماری طرف سے کوئی روک نہیں، ہم نے تو مطلب یہ ہے کہ تم کو دکھایا جب تمہاری یہاں پوری کی کام سنے تھے تو ہم نے دکھایا دیکھو ایشور ہے، یہ ویسی ہے، یہ ایشور کا لوگ ہے، یہ دیکھو سن کا لوگ ہے، یہ پار دن ہے اور وہ دیکھو تمہارا میں نے جب پلان بنایا تو دیکھو یہ کرتا ہے، ادھر دیکھو اس میں دیکھو یہ بابو بیٹھے ہیں، جب وہاں پولیس تمہاری تو انہوں نے سب پرکار میں روشنی میں وہاں کوئی سورج نکلتا ڈوبتا نہیں، اندھیرا ہوتا ہی نہیں، وہاں کہاں سے کوئی یہ سکتا ہے، یہ بابو بیٹھے ہوئے اس کا دکھا پڑی ہے اور یہ سپاہی ہے اور ان کو دیکھو جل بیٹھا وہ ہم نے ویدھان بنایا مٹ لوگ میں اور آپ کو ادھکار دینے کے لیے دینا ہے اور آپ کو ادھکار سبھی 10,000 مرتبہ کو سنایا، جب ویدھان نہیں بنا تھا تو آپ کو کہیے کہ بڑا اچھا نہ سچ نہ پسند نہ جائے نہ ہنسا نہ ہنسا ان سے کرتے رہتا سچ جو صاف سب سے کم لگانے بچے بچے جتنے بھی انسان آتی تھے سب سچو جو بھی وہ خدا کا دیدار پربھو کا درشن بات کا اس کا درشن دیدار سب سے اپنے دیش میں اپنے سچے والے کے سچے کوئی بندن نہیں
बेटा को किताबें। बाद में जब देखा कि सब चले जा रहे, तब उनको चिंता हुई कि हम मांगते जाए तो ये सब चले जाएंगे तो फिर हम कभी महाराज कितना करेंगे। तो आपको यहाँ रोकने के लिए तब उन्होंने ये कानून बनाया। कानून जब इंतजाम बना दिया तो आपको सुना कर सकता है। उद्रेगा से बोलिए अच्छा हुआ, ये अच्छा है, बुरा नहीं, जहाँ खाने बनाए, 84 दक्षिणियाँ बनाए और नरक बनाए, और ये स्वर्ग है और ये नरक है, इसको कानून ये सब मुझे बताया कि जो ये काम करेगा उसको इसको करना कर पहले खुदा का दीदार होगा, और इसका काम करेगा तो मतलब ये कि नब्बा दीदार होगा, और ये करेगा तो अल्लाह का दीदार होगा, पहले पाठ होगा, धर्म का दर्शन होगा। ये सब उन्होंने बताया। ये काम करोगे और फिर मैं तुमको 5 अरब 84 में तुमको पशु पक्षियों के होने को बंद करूंगा, और ये हमारे देश का जो पूरे करोगे शास्त्रों से ये कर्जा, वो कर्जा पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ये तुम्हारा अपना करण जैसे नहीं, यहाँ सब कसर यहाँ जमा होगा, पाप भी जमा होगा, पुण्य भी जमा होगा, अच्छा भी बुरा भी तो सब जमा होगा। तो जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो जितना भी तुमने पाप हो तुम जमा किया है तो मन पर भी जाए पर पाप बना। कभी बच्चा मार दिया, मछली मार दी, इसको किसी को मारा, सबको सीधा को मिलेगा हो जाता, और वहां तुमको कड़ी से कड़ी सजा दी। ये सब तुमको बताया। और देखो ये देखने वाले बाप को वो जेल बैठा हुआ, और वहाँ एक कैमरा लगा। कैमरा कोई लकड़ी अकड़ी का नहीं है, या लोहे डॉक्टर का नहीं है, किसी सीधा और कांच का नहीं, वो कुदरती ऐसा कैमरा लगा रखा है। जितनी तुम्हारी उम्र होगी उसमें से बचपन में से 5 साल काट दिए जाए, उसमें तो कुछ नहीं आएगा। आप इसके बाद जिसमें से निराला होंगे तो सबका सब अच्छा बुरा ठीक मोहम्मद वो नोट को आप पर न्याय और अन्याय ये जितना भी होगा, किसको मार रहे, काट रहे, धोखा दे रहे, बेईमानी कर रहे, चोरी कर रहे, कत्ल कर रहे, पशु पंछी को कुछ सब आएगा। तो ये होगा हमारे देश का करने वाला। और मैं मार करके रसूल करूंगा, वो है प्रोग्राम, ये है कर्म। मानव शरीर इंसान की ये शरीर है, ये कर्म नहीं होती। फिर मैं उसमें ख्याल करके तुम सब वसूल करूंगा, उसमें कुछ कह नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, कोई तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता। तुमको प्यास पाने के लिए, खाने के लिए पूछेगा नहीं, तुम्हें प्यास लगी है तो कोई पूछने वाला नहीं, भूख लगी है तो कोई नहीं, बुखार पड़ा तो कोई नहीं पूछेगा। ये कर्म नहीं हो, उसमें बंद करूंगा। तो आपने तो ये सब विधान को समझ सबने अब जो भी विधान बनाया उसको भाई सबको नहीं मानेंगे, हम न्याय को नहीं मानते, हमको कोई जरूरत नहीं, स्वतंत्र है। तो क्या कहता है, काल को मैं सत्तर भाई, सत्तर भ्राता, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं तो काल और शुभ और अशुभ कर्म करना है। जो तुमने शुभ कर्म किया वो, और जो तुमने अशुभ कर्म किया उन दोनों पर फल जाता। तो बताओ, आपने विधान भी खत्म कर दिया, उसके तहत उसके अनुकूल चलते नहीं हो, उसको मानते भी नहीं हो, सत्य भी नहीं समझते और असत्य भी नहीं समझते, और न्याय भी नहीं समझते हो, और हिंसा भी नहीं समझते, और अहिंसा भी नहीं समझते, और मोहब्बत प्यार भी नहीं समझते हो। तो बताइए कि जब तक आपने खत्म कर दिया वो प्रजापन हो गया, आपने जो कर्म किया उससे जैसा भाई इसी को हम रोकेंगे, वैसे तो हम रोक नहीं सकते। तो हम जब तुमको हम आजादी दे दी, स्वतंत्रता दे दी, तो जब तुम करोगे अच्छा बुरा काम, तभी तो मैं तुमको रोकूंगा, तभी तो तुमको सजा दूंगा। और वैसे तो तुम निकल के तमाम चले गए। जब तक ये बना नहीं था विधान, तब तक कितनी मनुष्य में जीवात्माएं सब लोग आपने देख सकते। जब ये तमाम के लिए जितना भी किताबों में लिखा नहीं जा सकता, इतनी खितें निकल गई
तब उन्होंने पीछे पूजा जोड़े तो में गाता बताया तो लोग ने कानून तुमको अधिकार दिया, तुमको ये सोचना पूछना चाहिए था ये अच्छा बुरा क्या। तो जो जानकार होता बताता ये बुरा है, इसका मुबत्तर में ये अच्छा है। तो अच्छा काम तुम करते रहते, बुरा नहीं करते, तो तुमको ये भरोसा ही नहीं जाता। आप तो इसमें सब बैठे इनमें से किसी को नहीं मिला, ये जो बैठे हुए इनमें से किसी को मिला नहीं, सीधे ना सीधे जाने। तो मनुष्य शरीर इतने युगों के बाद, यदि इतने कल्पों के बाद आपको यह कल दुर्लभ तुमने पाया, कौन जब भटका खाया, इतने दिनों के बाद ये मनुष्य शरीर आपकी ये जीवात्मा को जलाकर मालिक को प्रभु को पाने के लिए अपने देश पे जाने के लिए आपको मिला। तो हमने जो सुकून का ये पूरा कचरा तो आपको पुण्य का कुछ किया नहीं, मनुष्य शरीर के पाने कोई कर्म नहीं किया। जब आपने कोई काम नहीं किया तो मनुष्य से आपको कैसे मिलेगा, सीधे जाएगा आपको तो पता नहीं है। जब वहाँ समय पूरा होता है स्वास्थ्य का, तो वहाँ प्रचार दफ्तर से कट जाएगा और वो सिपाही को देने के लिए ऊपर जाए बैठ गया। सिपाही को लाएगा नरेश सिंह राजा, ये नरेश सिंह आवाज जोर से देगा, वो यहाँ नरेश सिंह कहाँ रहता उससे कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ से पूरा जोर से आवाज जाएगी। और जिससे दूर कहीं रहता उससे यही से बोलेगा और वहां से आवाज जाएगी। तो नरेश सिंह जब सिपाही की आवाज सुनी तो इतनी खौफनाक, इतनी डरावनी, इतनी भयानक आवाज जो खौफ और डर की वजह से फट नरेश सिंह लाया अंधा हो, बहरा हो गया, न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता, न समझ सकता है, जमीन को देखिए। सब लोग दौड़ पड़े, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब कालूराम सेठ उसका पर्चा कर दिया तो उनका एक सेठ कालूराम सिपाही ने कहा कि पर्चा कट गया, मैं जल्दी आने वाला हूँ, तुम मुकाम की तैयारी करो, खड़ी बात उसकी बात उसकी सुनवार आखिर भी काल करे मुझे दौड़ पड़े, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। अभी तो ठीक था, कोई बुखार नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था और अभी बोल रहा था और बोल के वहां दे रहा हूँ तो फिर गया था। अब वो कहते हैं भाई मेरी तरफ देख ले, सुन ले, मेरी तरफ जरा कह दे क्या हुआ, क्या हुआ, देख ले। न तुमको पहचान सकता है, न वो कुछ काम में ले सकता है, न वो बोल सकता है, न सोच सकता है। कहा से वो सिपाही पहुंच गया, ये वारुट है, बांटना है तो उससे झगड़ा करने लगा कि नहीं 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 ये है वो, तो बस मान रही। सिपाही इतना मारा था, इतनी यातना दी उसको, इतना उसको शरीर में पीड़ा दी कि तब वो स्वामी तुलसीदास लिखते जन्मत मरा जन्म में और मरने में इतनी अत्यंत पीड़ा होती है जो किताबों में लिखा नहीं जाता और मुझे बयान कितना और मार के तो वहां निकाल के ले गए वहां, तो हिसाब किताब तैयार रखा। तो मतलब ये है कि वो जो कैमरे का जो आपका छपा था, जिसमें जिसके साथ जो किया, आदमी मारा, बच्चा मारा, रात को चोरी की, डकैती की, झूठ बोला, बेईमानी की और सब किया, आपने खाना खिलाया, पानी पिलाया और ये वो जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सब उस पर छपा हुआ। तो वो सब जन के पास सामने, हाँ 1 मिनट के अंदर सपना हो जाए। वो कहे भाई राजा तुमको तो रात दिया था इसलिए कि तुम प्रजा का पालन पोषण करो और अपनी सारी जाया तो तुमने ये क्या किया, लाखों मार दिए। ये तमाम से बोलिए औरतें तमाम सिर पड़े, हाथ पड़े, पैर पड़े और ये देखो तरफ रहे, सब आदमी उसके हाथ बैठा और सात संपत्ति को तो तुमने तो इसमें कोई पुण्य नहीं किया। तुमको कोई वकील मुख्तार करे नहीं, तो उसकी तरफ
मेहनत करेगा तो उसमें है, और जो दिख रहे बात वो और चक्र वाला दोनों केमिकल लिया मिला दिया, तो दोनों में एक जाओ सिपाही, इनको सुनाया जाता है, यहाँ से ले जाओ तो वहाँ की सिपाही अलग, यहाँ से ले जाएगा तो सिपाहियों के हवाले करेगा। चलो जाओ 10 करोड़ वर्ष के लिए उस नाम वाले डॉक्टर ले जाओ और सारे नाम के खंभे में इनको जलाना। 10 करोड़ 1 करोड़ वर्ष से 10 करोड़ इनको ले जाना तो 80 लाख वर्ष तक उस नाम वाले डॉक्टर में काटना। बच्चा संतुष्ट देता और द्वापर कितने जीत जाएंगे तो अरे बाहर आदमी को अपनी जीवात्मा की तो विभाजित कर दे, अरे इस पर तो कुछ रहम कर, इस पर तो कुछ दया करके तो पीना जा रहा, वहाँ बीच में तो रोकने वाला नहीं है, तो ये पानी करा दिया हमने इबादत कर दी और ये कर दिया, उसके को रोकने वाला नहीं, क्योंकि तुमने जो कर्म किया उसको ये जमा उससे तो धुलेगा नहीं, पानी से धुल नहीं जाएगा। मतलब पूरा पश्चिम में जंगल में जाओगे तो वहाँ तो धुलेगा, वहाँ तो आग और पानी कुछ नहीं पहुंचा, तुमने समझ लिया कि हमने नहा लिया, तो हमारा ये सब समझा वो सब यहाँ वो तो शरीर के ऊपर नाके पर जमा है, तो वहाँ तो गया है। तो आप अपने जीवात्मा रूप के लिए क्या है, किंतु है जब इससे ये जीवात्मा चेतन रूप निकाल दी गई थी वो कभी जाएगा उस बात के सामने वही पड़ा हुआ। अब आपने देखा कि वही चीज चला गया, तो आपको उनको क्या करना है, तुम्हारे यहाँ बहुत रहता है, अब हम डॉक्टर रहता हूँ तो तुम्हारा पति है, वो तो माता पिता डॉक्टर रहता है, बहुत इतना कपड़ा डाल, तो कपड़ा डाल दिया, क्या पत्ते मत करोगे, अरे तिलोड़ी बंद करके इसको रखोगे, अभी अगर 48 घंटे रोक दिया बस बीमार टाइम अपनी करता, तो ले जाओगे आपने रस्ता बनाया अपना व्यवहार, चलो चलो उसको गड्ढा खोलेंगे 10 फुट, देखिए वोट के इसको दफना देंगे, एक ने कहा हमें पैसा ले चल बनाते हैं, उसको करके मट्टी से निकाल ले जाते, चलो उसको जलाएंगे, तो लकड़ियों बना करके उसको जला दिया। एक कहता है कि मैंने स्वास्थ्य में इसको पकड़ बांध के डुबा देंगे, तो जी जब खा जाएंगे। आगे बताओ कि उसके साथ क्या गया, राजा रामचंद्र के साथ, खालूदेव के साथ, मजदूर के साथ क्या चीज थे, कुछ चीज लिए जा। आप जब अभी अनमोल महोत्सव में हो और बुद्धि आपको पीछे की और आपका आगे सोचने की दी गई, तो इससे कुछ आपने विचार किया कि क्या ले जाना, अगर आपको उसके लिए नहीं पूछेगा। हमारे उसने प्रारंभ तरतीब बनाई और उसने सब एक दिया, तुमको रोज रोज खाने पीने को सब आप कुछ अच्छा नेक काम, पवित्र काम, शुद्ध काम, पूर्ण कमाएगा, ये तो तुमको मिलेगा, उसमें तो तुम कोई काम करो खाने को मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छा कर लेना तो उसकी बात में ये तुम इसको ढूंढ लोगे और वो तुम जो कर्म करोगे तुम अच्छा कर्म करोगे, ये काम तो फिर उसकी प्राणी बन जाएगी, तो मनुष्य तैयार हो जाएगा, जब किस्मत बन जाएगी, प्रारब्ध बन जाएगी, निष्फल कर दे तो तुम आराम से रहो, तो पुण्य कर्म करो तो भी आप नहीं सीखा, कैसे करेंगे हम तो नहीं मारते, तो बताओ सजा कौन को देगा, एक काल का देख यहाँ कभी सुखी रह सकते हैं, आपको कुछ लेने आया मेरे को किसके कार्य पूरा किया, वो मेरा काम है। ये जितनी गाड़ियां हैं और जितनी साइकिलें, मोटरसाइकिल और जितने भी ट्रक हैं और जो भी सवारी है, सुबह से लेकर के शाम तक सड़क पर खड़े हो जाओ और 24 घंटे सड़क पर खड़े हो, भाग नहीं सकते। इतने सवारी उस पर बैठ करके मेरे साथ ये लोग चल रहे हो, कब तक चलेंगे 31 दिन, जब 31 दिन का मौका दिया है तो आप इनसे पूछने के भाई तुम कितनी बाबा जी के साथ जाए, इनके साथ कितनी तो आपको बताते हैं, तो ये कहते हैं भाई तो हम जिसके लिए जा रहे तुमको दे रहे, तुम जल्दी से लूट लो, लूटे रहे उसको ले लो,
सरदार से प्यार मोहब्बत से वो बेशकीमती चीज है, अमूलक है। तो आपने इससे भी पूछा और सरकार तुमसे चाहे कोई बात मांगने आए थे कि हमने कोई राज मांगने के लिए आया हूँ? अरे जीवात्मा की समस्या सिंचन की ऐसी उलझ गई और पोछा ला दिया और सीधे जा रहे हो, जब वो देख रहे तो जा रहे हो खंडक में, आवाज चिल्लाओगे कोई वहां तुम्हारा पति पत्नी पिता पुत्र धन दौलत नहीं जाएगा, सिपाही नहीं जाएंगे, तो हम तुमको सचेत कर रहे तो तुम समझते हो कि तुम सामने आए। बड़े अफसोस की बात है कि मजदूरी जो बुद्धि पा करके ये पूछते ये मेरे साथ 31 दिन रहेगी, 30 तारीख से 30 तारीख तक 31 दिन होते, ये मेरे साथ तो आपने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? आप पूछते ये जो सवारी है बाबाजी दिया क्या तुमको खाना पीना बाबाजी ने कुछ बताते आप? तो ये बात तो आपने खुद से पूछे नहीं और सरकार ने आप कर तो आपको क्या मिलेगा? और हम आपको अमूलक जीते में आए कि भाई कम से कम इनसे पूछ लो, शंका में डालो और पूरी पूछो, सत्संग में बैठ जाओ, पूरी बात को सुनो तो शंका मिल जाए तुम्हारी। तो हम इनको साधु बनाने थोड़ी आए, क्या हम इनको सबको साधु बना देंगे? हमारा एक काम नहीं, हम इनसे ही कहते हैं तुम खेती करो, दुकान का काम करो और मजदूरी करो, कैसे करो ईमानदारी। हमने सब घर में पता लगा दिया कि घर में अगर पत्नी ईमानदारी मदद से रहेगी तो मोहब्बत का रहेगा और पत्नी पति मिलकर के घर में रह सकते हैं। ये सब अपने पता छोटी किनाया पर और भारी भारियों में अगर बरसती तो भाई काम करते तो नहीं करते, हमारा तुम्हारा बिल्डिंग खाएगा तुम्हारा रोजा झगड़ा। समाज में अगल बगल में पड़ोस की ईमानदारी में चाहिए तुम्हारे पास ले आएगा, वो दफ्तर है, दुकान है, खेती है, ईमानदारी में सिखा और काम को बढ़ाओ। और मैं रास्ता बताता हूँ जीवात्मा में जानने का, दिन ले तो ज्ञान से शुरू हो सुनने का, भगवान की देखभाल सुनने का, यानी खुदा का कलमा सुनने का ऐसे वो रास्ता बता मुझे तो हो सके तुम तो दफ्तर में काम करो, दुकान का, खेती का और मजदूरी का ईमानदारी मेहनत से और शाम को बच्चों के सेवा करो, रात को फिर उसके बाद जितने अनाज मोटे बड़ी जितनी सब्जी पैदा होती है वो और सूखे कीड़े पानी और दूध जितना खा सकते हो 20 बार 20 बार खाओ और 50 बार 50 बार खाओ, आपको मात्रा में मिल जाए। वो सोचो को समझ लो तो क्या चाहते आपको ध्यान में रखिए, झोंके में रहो। आपको धोती पसंद की दुकान बना लो, अच्छा दुकान मोटे कपड़े आप पसंद मोटे करो, भाई कपड़े पसंद नहीं करो, हमको कुछ मांग नहीं है। ये मंदिर में जीवात को बैठी है, इसका धन इसका खजाना हो गया तो उसका खजाना ले लो। अरे खजाना जीवात्मा लोगों का खुदा ही खजाना, तुम्हारे सबके पास दरवाजा बंद हो गया। आप वो जब तक 500 हफ्ते से मिलेगा तब तो मुझे किया आपको तो इस सबसे अमोलक चीज देते हैं। एक पुस्तक के राजा बादशाह है, तक परमात्मा से चला गया, वो तो कुछ देखा गरीब वाली छोड़ के चल देते समय समय की बात है तो समय पर ये था घर में रहो और घर में रह करके सब चीज और छोड़ दो, ये हमारे पास नहीं। चले महाराज चले हमारे बीमार है और हम बीमार है और सरकार को थोड़ी
होती है और हम मतलब ये है कि कम बीमारी में दवा में खर्च करते हैं, तो जितनी दवा खिलाते हैं वो बीमारी मर जाती है। तो हमने कहा भाई हम कुछ करेंगे मालूम है, पहले वाजिब बात हो तो सुना है, तो मेरे तक तुम नहीं मान सकते, ऐसा करो ना तो 4-5 तक तो हम बैठा तो 1 घंटे बाद तो हमको सुनाया करेंगे और फिर उसके बाद में तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम आना आने का। तुम्हें क्या काम करते हो? पहले तुम्हें क्या बात काम 50 रुपये, पहले तो 35 मिलते थे 50 रुपये। हमने कहा ठीक है, पहले कोई पैसा नहीं बचता था, तो हमने कहा एक काम करो कि दफ्तर में ईमानदारी से काम खड़ा हो गया, उससे प्राप्ति अगर हमसे ईमानदारी प्रदर्शन हो सकती है, हम नहीं, हम अगर ईमानदारी प्रदर्शन रहेंगे तो हमारे हम दबा कहाँ से जाएंगे? देखा वही तो बात कह रहा जिसको बोले बर्बाद वैसा क्या मतलब है कि तुम मर पाता तो 10 दिन 15 दिन तो आने लगा और रोज बैठे, रोज तुमने आकर के 1 महीना हो गया। तो हमने भाई तेरी इतनी कहते हैं कि ठीक हो गए, मैं क्या कहते ठीक हो और तू मेरे ठीक नहीं था, तो मेरे खर्चा तो कुछ नहीं, मुझे देश से सत्संग का करना आप तो क्या करें, हम ईमानदारी कर आप ईमानदारी में रखते काम हम किसी से कुछ देंगे नहीं। जब हमारा पैसा बच गया और हमारा बजट दबा के हमारी स्त्री ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। अगले लाते तो आदमी बैठे 50 आदमी बैठे क्या करते हैं, कह रहे ये मन कर रहे वो भजन कर रहे तो भगवान के पाने का भजन करें, तो भजन करेगा हमसे नहीं होगा। वहां चिल्लाया खड़ा हो गया और वहां तक क्या अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर बीमारी लग जाएगी, तो तेरे बच्चे को तेरी घरवाली को और तो फिर चिल्लाएगा करके ये तो बात तो सुन रहे तो अब ये तो कहता नहीं आप जैसे तुझको फायदा हो गया ऐसे ही तुझको इसमें फायदा हो जाए। वो आने लगा तो फिर देखो तो देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, तो 1 घंटा आधा घंटा से ऊपर बैठ करके उठे और वो प्रणाम कर रहे होते जो जहाँ काम करता रोज आए। अब उसने कहा आप उसको रास्ता बताया तो बजट करने लगा, उसके साथ जब बजट करने लगा उसको मिलने लगा तो आनंद बड़ा आनंद करने लगा। तो सोचने लगा इस सुबह से अंधेरे में उठता हूँ दफ्तर जाता हूँ 8 दिन है और वहाँ पहुँच करके तक काम करता हूँ और रात को 9 बजे 8:30-9 बजे छुट्टी होती है तो मैं रात को 11 बजे पहुँचता हूँ। तो ऐसा महाराज जी से पूछना कि पैसे की बचत हो गई है और हमको बजट करने का समय नहीं मिलता है तो हम पैसे देश दिखाई के देगा। पहले तो ईमानदारी में रस्ते नहीं रहता था और पैसे देगा तो लोग कहेंगे इतनी जरूर दिया, पैसे दिए लोगों से ठगा है और मतलब पैसे बचा जो कहेंगे तो कैसे रहेगा तो सुने। अब देखिए उसको बर्दाश्त की मात्रा में कि जो भी कहेंगे पैसे करेंगे लेकिन दिए नहीं छोड़ सकते। कितने की साइकिल लेके 55 रुपये मैं 50 ले जाओ मुझे आया आप सुबह से पी जा रहे हो वहां से पूरा और बच्चों की सेवा करे और मुझे समझाएगा तो लोग कहने लगे देखो कितना बदमान और लोगों से पैसे इकट्ठे करके जो पैसे कुछ चाहिए पहला पैदल आता जाता तो कोई किसी की साइकिल या कोई किसी की और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे को
देखने की इतनी उनको घृणा होती है और इतनी जलन होती है कि वो सामने रहता होता उन्होंने पूछा पहले तुम्हारे चोर है भगवान से लेता रहता ये ऐसे ही कहेंगे उसको अपना काम करेंगे ठीक है वो ठीक है तेरी संगति को तो खरीदे तो ये देखिए आप इसको पूछिए तो भाई बाबा जी के साथ क्यों चल रहे थे कोई सोना चाहती या तुमको कोई मिले जमारा या तुमको कुछ और क्या देखते हैं ये बताएगा ये बता देगा आपसे क्या पूछते हैं तो आपको प्रॉब्लम आप पूछेंगे हम तो देने के लिए आपको भी आएंगे आप लेना चाहे देंगे लेकिन आप इसलिए हम ईमानदारी करते ईमानदारी करते तेरा है क्या यहाँ तेरा कुछ नहीं है तो ये जितना भी मेहनत कर रहा सब सामान घर बनाया सब सामान इकट्ठा किया सोना चांदी तेरा कोई कुछ नहीं जब तेरा यही मकान नहीं है और ये जैसे ही खाली हुआ जीवात्मा चेतन को निकाल के लगी है और वो सामान बिगाड़ मिट्टी घटती दी तो तेरे काम आया नहीं तो किसी के काम आने वाली चीज नहीं हो तो मिट्टी है जब शरीर पैदा करने वाला मिट्टी है यही मिट्टी हो गया क्योंकि मिट्टी पहले तो उसमें तो कुछ जरूरत है नहीं जीवात्मा उसमें तो रोह है नहीं है कि भाई उठ के खड़ा हो जाएगा और चल देगा तो आप काम करो मिट्टी का तो घर का दफ्तर का काम करो और जो कुछ भी ले आओ उससे शरीर की रक्षा ये सब सामान उसने इसलिए दिया है कि इसकी मदद मस्ती करो और इसको निरोगी रखना ताकि इसमें जीवात्मा रखिए तो नहीं हो जाएगा ये बात हो जाएगी हमारी इबादत आत्मिक मतलब ये है कि ये सब चेतन का मदद करो तो जल्दी काम हो जाएगा तो इसकी मदद पट्टी करते रहो और मदद करो मदद पट्टी करने के लिए समय बांटो हम देंगे 7 घंटे दर्शन में देंगे और 6 घंटे सोने में देंगे और इतना दुकान में देंगे इतना हम खेती में देंगे इतना मजदूरी में और इतनी हम सेवा करेंगे और सब जाओ तो हमको चाहिए आपके रूप तो ये सब तुमको मिल जाएगा आप मत करो क्योंकि जहाँ समय जाता है वो काम मिले हम आपका खेती के बाद और दफ्तर का मजदूरी का कोई समय खराब नहीं करेंगे और बच्चों की सेवा बेकार समय उसको आप काम में लेंगे और उसकी बात के सामने उसमें तुमको 2 घंटे समय देंगे पहले तो 1 घंटे जब लोगों को मिलने लगेगा काम होने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके 2 घंटे क्या तुम्हारा नुकसान होगा अब मेरी ये प्रार्थना है आप तो पढ़े लिखे हम आपकी बड़ी इज्जत करते सब इंसान हो आप और समझदार हो हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ न कुछ पहचान होना चाहिए ये आपकी उम्मीद है ये सबसे कहा जाए कि आप ऐसे उन्हीं को निकाल दीजिए तो आपने उसी को निकाल दिया तो हमने इससे कहा कि जाओ जितने भी जरूर उनके ऊपर निकाले उसकी काट तो उन्हें आपकी काट दीजिए बताइए क्या आपको पीड़ा नहीं हो पीड़ा नहीं होगी अरे दर्द नहीं होगा जोर से बोलो दर्द नहीं होगा होगा तो दर्द आपको बोलो आपको त्योहार को जब आपको पता चला कि हमारी उंगली कट गई तो कितनी बीच देनी कितना दर्द होता है तो आपको भी जानना चाहिए कि यही जीवन यही तुम्हारा मन जो तुम्हारे अभी शरीर में यही तुम्हारे प्राण यही तुम्हारा चित्त है ये सब चीज यही है जो तुम्हारे पास है उधर एहसान हुआ उसने एहसान किया और चलते वक्त फैसला किया जाओ ये लड़का है लड़की है ये राजा है राजा का लड़का है ये खेत साहूकार है काश्तकार है मजदूर है जाओ इसको निकाल के वो उसमें जाके मुर्गे में बकरे में शेर में हाथी में बिच्छू में मगरमच्छ में उसमें खरगोश में उसमें भेड़िए में और गधे में और भैंस में और गाय में उनको जाकर तो यही जीवात्मा यही मानव यही चित्त है ये बुद्धि है ये सब कुछ यही है तो इसी में से निकाल उसको बंद कर दिया मनुष्य से ही होता उस पशुपक्षियों की योनि में किसी से ही जीवात्मा निकाल बनती है और आपने उनका प्रेम इसे स्थान कर दिया
किसी के हाथ में खबर काट दी तो ये बताइए उनको दर्द नहीं होगा? वो दौड़ते तो आपको दया मान आपके लिए तो सत्शास्त्रों में कहा है कि जीवों को दया करना, पहली किताबों में कहा है कि उनको रहम करना। आपको कोई रहम करना चाहिए, समूहों पर जरूरत हुई वही तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि आपने बच्चे की काम काट दी, वही तुम्हारी स्त्री है वो प्रसाद काट दिया, वही तुम्हारी और तुम्हारा पिता है तो तुमने उसका खबर काट दी। तेरे मतलब ये है तुमको इतना ख्याल नहीं हुआ ये हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध इंसान कितना बड़ा अपराध है। तो बताइए वो फैसला करेगा तो कितनी कठोर सजा देगा। हम आपको बताना चाहते हैं आप इंसान आप में रहे मैं आपको रहा तो जैसे आप मतलब ये है कि गर्मी बढ़ सकता है भूख प्यास से तुमको दर्द होता है तो कह नहीं सकते हैं और आप मछली कहते बस इतना ही। अगर उनको 500 तक पूरे मिल जाए जैसे आपको 500 पूरे मिल जाए पूरे उसी को नहीं मिल जाए तो बोलने लगेंगे बातचीत करने लगेगा आपसे और आपसे कहने लगेंगे। लेकिन उनमें एक तत्व कम है, किसी में 2 तत्व कम है, किसी में 3 तत्व है। इस तरह से अगर मनुष्य शरीर में एक तत्व कम कर दिया जाए आकाश का तो बुद्धि कोई काम नहीं करेगा, नगा नहीं करेगा, जो चाहेगा तो खाएगा मेरा खाएगा उसको कुछ दिखता है क्या चीज कितने दवा कराते हो आप उत्पादन की लेकिन जब तक वो तत्व पूरा नहीं हो जाएगा समान जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जब तक पूरे समान हो जाते हैं तब तक बुद्धि नहीं काम करेगी। अब वो तत्व अगर समान पूरा हो जाए आकाश तक तो मैं बुद्धि काम करेगी तो अच्छा हो जाए। असली बात ये भोग्यो नहीं है, ये है कर्म। उसमें जो कुछ भी दंड मिलेगा सब भोगन है, कर्जा उसको किया जाए खुलेगा। उसके देश का ही कानून है कि मेरा कर्जा पाप का बिना पर ब्याज लगेगा और वो सब आपको आना करना। तो इतना आपने यहाँ लाभ रखा जैसे पहाड़ एक उत्तम उतारेगा आप तो कभी उतार नहीं सकते हो। जितने जो बीज जाए कितने कल बीज जाए ये मुझे तो आपके जैसे उतारोगे वो तो जब कोई महात्मा मिलेगा और योग रूपी ज्ञान रूपी जब अग्नि जलाएगा तो उसमें जब आपका दफन करेगा जब तक वो महात्मा होकर जीव लेगा तो ये कर जाएगा काम करे ये दयाल देश तो तुम्हारा वहाँ तो कोई सजा है नहीं और वहाँ कोई जलता मरता नहीं, कोई न दफ्तर है न दुकान है न खेती है न खाना है न पीना है न कोई बाल और बच्चे वहाँ तो जीवात में आ जा रहा अपने देश को स्वतंत्र करते हो तो आधा पर है ये काम करते हैं। बात को ये रखा था कि हम तुमको ऐसी यूनी देंगे कि यहीं से तुम सीधे अपने देश को चले जाओ इंसान जमा। तो आपने तो इसमें कभी ये सोचा ही नहीं कभी हम उससे रह जाएगा ब्रह्मचारी के पास काली देश में चक्कर काटूंगा यही के काम करते हो तो यही आपको बंद करना तो क्या फायदा है। आप लोगों से अपील है हमारी कि आप सबके सब जिससे मोटे महीन अनाज है और जिसमें सब्जियां दूसरे चीजें फलो और ये जिसमें 12 होगा ये बहुत से लोग बच्चा उठा ले जाते हैं छोटा सा